subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. So just because I chose a connection जो सबसे पंगे लेता रहता है, that was the reason I was always the target. Very I mean सबसे हटके जो होता है ना एकदम अलग बंदा की बहुत अजीब है, ये क्या बोल रहा है, ये क्या कर रहा है. तो ऐसी चीजें कई बार हुई कि मुझे समझ में भी नहीं आया कि करता क्या है बंदा, इसके इंटेंशंस क्या है. वो 48 आवर्स का शूट होता है और वो दिखाते सिर्फ 1 घंटे का है. I wanna say sorry to my viewers because I didn't choose a right connection for myself. People are feeling sorry for me. And मेरे अलावा और कौन-कौन है वाइल्ड कार्ड एंट्री से, कौन-कौन आने वाले हैं और उनमें से कौन कैसे जाता है वाइल्ड कार्ड एंट्री में. So guys, today we have Riya and unfortunately इनकी journey जो है Spitsvilla से खत्म हो चुकी है and today we'll be talking about her Spitsvilla experience. So hi Riya, welcome to India Forums. Hi, how are you? I'm fine. How are you? I'm good too. Okay, Riya, I just want to ask you. My first question is why you did Spitsvilla, because we have seen you have done music videos and you're popular on social media. What made you to do Spitsvilla? So there were 2 reasons. First was I have never been on a reality show, so I wanted to experience it. And second thing was genuinely जो सारे contestants जिनका I think सारे contestants का ये intention होता है connection ढूंढना. So yeah, even that was the reason. Okay, connection, fame and everything, Spitsvilla से काफी सारी चीजें मिलती हैं. तो आपको लगता है आपको connection मिला जिस चीज के लिए आप गए थे? No, I had a terrible experience, I guess. I don't think so कि connection मुझे मिला. आपका connection ही सही नहीं होता है, आप सही नहीं ढूंढते हो, तो then your game is over. So this is the first thing I think people should put in mind if anyone wants to apply for Spitsvilla for next year. So you think somewhere connection जो था आपका थोड़ा weak था या choice सही नहीं रही जिसकी वजह से आप dump हो गए? Exactly. I think I was always the target if you see my journey. So I never had any kind of big rivalry with anyone on the show. वो लड़की हो या लड़का हो. Just first dome में I had a problem with Vyomesh and that's it. उसके बाद हमने देखा ही नहीं होगा कि कभी मैंने उससे कोई बात क्या लड़ाई. So just because I chose a connection जो सबसे पंगे लेता रहता है, that was the reason I was always the target. So ये मेरे लिए I think एक disadvantage था. Because I'm a person जो कभी बेमतलब के पंगे नहीं लेती लोगों से, बेमतलब की लड़ाइयाँ मुझे पसंद ही नहीं है. So I think there were a lot of other guys on the show जिन्होंने इतनी लड़ाइयाँ नहीं की, जो peace में believe करते हैं. So I think I should have paired up with someone else, but not just bad choice. There was a time जहाँ आपने और शिवम ने एक दूसरे पे give up भी कर दिया था and you thought कि हम लोग move on करते हैं, दूसरे connections में ढूंढती हूँ और ढूंढता हूँ, but फिर कहीं ना कहीं you end up with each other. Yeah. So don't you think कि show में survive करने के लिए you could have changed your partner, but what Exactly. like you were still with him? So somewhere everyone had a focus on game. I think मुझे भी game पे थोड़ा ज़्यादा focus करना चाहिए था. I should have मेरे को decisions थोड़े यहाँ से होके थोड़े और cunning होके decisions लेने चाहिए थे. But मैंने वो चीज़ नहीं करी because Spitsvilla में जब हम रहते हैं तब वहाँ पे we don't have phones, we are not in touch with our family and friends. और वहाँ पे आपका कौन अपना है कौन पराया, it's very difficult to figure out in short span of time. तो कहीं ना कहीं I had made an emotional connection with him. So because of that I think I was emotionally connected, like attachment हो गई थी मुझे, तो उस वजह से I went back. But अगर देखा जाए तो I shouldn't have continued the connection with him. I should have changed. तो शायद मेरे लिए थोड़ा एक्सपीरियंस बेटर होता. जीतना और हारना तो हमारे हाथ में है, बट एक एक्सपीरियंस जो आप कहते हैं एक जर्नी होती है वो थोड़ी ज्यादा बेटर. Okay, we saw you breaking down also. A big breakdown हुआ था कि like where आपके shoes को लेके बात हुई थी. She's here to perform and she didn't got sport shoes and oh God.
and he started making connections with other contestants. So वो जो period था आपका, तब आपको नहीं लगा था कि यार no, it's not happening. And you know, कभी भी कोई task होता था, कुछ होता था, तो शिवम का वो motivation जो और couples का हमें दिखता था towards you know their partner, वो आप भी बोलते थे आपको नहीं मिलता है. Exactly. See, क्या होता है पता है, डो में जब उससे वो बात बोली, I started, I mean, I was shocked. I mean, मैंने बोला यार ये ऐसे कैसे बात कर सकता है बंदा? And how can a girl not bring pair of shoes with her on a show where she has to perform? Obviously, I had got shoes and I feel very stupid. मेरे को तभी डोम में भी चल रहा था कि क्या मैं ऐसी बकवास चीज पे explanation दूं. And I had said him कि packing में कुछ issues हो गए थे. And there were a lot of stuff that I had bought. तो एक आधी चीजें रह गई है जो कुरियर के थ्रू हमारे घर पे, क्योंकि ये शूट केरला में हो रहा था और मैं मुंबई गई थी. So I said कि I have ordered it and all that stuff. ये बहुत छोटी सी बात है, ये कोई बात भी नहीं है कि आप डिस्कस करो या कनेक्शन तोड़ो या all that. मुझे ऐसा लगा कि इस बंदे के पास कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, and that is the thing. उसने वो चीज ऐसे बोली, ये एक मजाक बन के रह गया था. And at times he made you feel very special also by giving that chain. There were times he made me feel special. There were times where he was behaving very, you know, I mean, सबसे हटके जो होता है ना, एकदम अलग बंदा की ये बहुत अजीब है, ये क्या बोल रहा है, ये क्या कर रहा है. तो ऐसी चीजें कई बार हुई कि मुझे समझ में भी नहीं आया कि करता क्या है बंदा, इसके इंटेंशंस क्या है. And when it comes to support and motivation, I think I would have found, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शो पे ऐसे लड़के थे जो डेफिनेटली फ्लिप भी कर रहे थे, बहुत सी चीजें कर रहे थे, बट दे हैड अ वेरी नाइस सपोर्ट एंड दे वर वेरी पॉजिटिव. बिकॉज क्या होता है ना कि अगर आपका खुद का कनेक्शन आपके लिए पॉजिटिव हो, आपको स्ट्रॉन्ग फील करवाए, आपको मोटिवेट करे कि डोंट वरी हो जाएगा, डोंट वरी, चिल, आई एम देयर फॉर यू, विल डू दिस टुगेदर, वो सारी चीजें थी नहीं. टू बी वेरी, कोई ऐसा बंदा होता जो मुझे स्ट्रॉन्ग फील करवाता. I know I was a strong contestant, but I think there were some positive things that I was missing in my job. And what was that thing? भूमिका को भी एक रिंग दी थी और आपने उस पे कुछ वहाँ कुछ बोला नहीं उस डोम सेशन में. The reason is that, see, जो वो एपिसोड होता है वो 48 आवर्स का शूट होता है और वो दिखाते सिर्फ 1 घंटे का है, ठीक है. तो उसमें काफी चीजें होती है जो लोग मिस आउट कर देते हैं, जो चीजें एडिट हो जाती है, जो चीजें कट हो जाती है. आई एम नॉट सेइंग दैट मेकर्स आर ट्राइंग टू शो समथिंग एल्स, बट दे एडिटेड सम पार्ट. और जो पार्ट वो एडिट हुआ था डोम में, तब भूमिका ये बोलती है कि वो रिंग वाज अ टोकन ऑफ फ्रेंडशिप एंड ही हैज गिवन दैट रिंग टू पलक, ही हैज गिवन अ रिंग टू भूमिका. देन उसने एक आधे लोगों को चेन भी दी, उसने अदिति को भी कुछ गिफ्ट किया, जय को भी कुछ गिफ्ट किया, और मुझे तभी स्टार्टिंग में चेन दी थी एंड ऑल दैट. सो शिवम का ये नेचर रहा है कि वो अपने फ्रेंड्स को वो टोकन ऑफ फ्रेंडशिप दे. सो ये चीज डोम में क्लियर हो गई थी, तो मैं क्या ही बोलती. And you know, I mean, I had nothing to say. Yeah. I think it was just a misunderstanding जब लोगों ने वो चीजें देखी, and Shivam was laughing after them कि मैंने जानबूझ के केविन के सामने वो हरकत करी ताकि वो you know ऐसा टॉपिक लेके आए, and then उसका मैं पचका करूँ that it was just token of friendship. But I think अगर ऐसा कुछ होता तो भूमिका और शिवम वहाँ पे कनेक्शन एज अ शो करते या कुछ कहते, but ऐसा कुछ नहीं था. It was just his prank. Since you are out, so what do you think कि शिवम next connection किससे बनाएंगे? Obviously भूमिका, if I'm not wrong. I think भूमिका is with Nikhil. So हमारे ग्रुप की जो एक बंदी है, that my friend Palak, she's the only girl जो left out हो गई थी जब वो गोल्डन मिलास से निकल गई थी. So I think शिवम के पास उसके साथ परफॉर्म करने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है, बिकॉज वहां पे शो पे एक लड़की तैयार नहीं थी उसके साथ कनेक्शन बनाने के लिए, या नो गर्ल यूज्ड टू लाइक हिम एक्चुअली. सो आई थिंक दैट वाज एन इजी ऑप्शन, इजी चॉइस. And tell us what happened in the current dome session जिससे आप evict हो गए थे, आप out हो गए, eliminate हो गए, वो एक surprise dome session था. Exactly. That was a surprise dome session and मेरे लिए भी वो surprise ही था जो भी हुआ मेरे साथ dome session में. You know, Vyomesh was very kind,
बट एज यूजुअल आइडल मैच हैवन पावर, उनके पास पावर होती है, तो वैसे ही अपने पावर का इस्तेमाल करके केविन जो है केविन ने मुझे डंपिंग जोन में डाल दिया. सो ये बहुत ऑब्वियस चीज थी, क्योंकि डे वन से डोम वन से देयर वाज अ बिग राइवलरी बिटवीन माय कनेक्शन एंड केविन. सो इट वाज वेरी ऑब्वियस दैट ही वुड डू दिस. बहुत जल्दी ग्रुप्स बन गए थे, 2 ग्रुप्स हमें क्लियरली दिख रहे थे, क्योंकि क्वारंटीन हुआ था 7 डेज का. तो जहाँ पे हम लोगों को बिकॉज जैसा टाइम चल रहा है, आई मीन कोरोना वगैरह चल रहा था, तो उस हिसाब से देयर वाज सम गाइडलाइंस गिवन टू द शो कि 7 डेज का क्वारंटीन रखना है. सो वो क्वारंटीन 7 डेज का था, तब हमें अलाउड नहीं था कि हम किसी को भी मिले, ठीक है, किसी से बात करें. और वो 7 डेज की क्वारंटीन में भी हमारे पास फोन नहीं था. तो तभी कुछ लोग एक्स्ट्रा स्मार्ट थे, कुछ लड़के एक दूसरे को मिले, व्योमेश केविन मिले, शिवम निखिल मिले, काफी चीजें हुई क्वारंटीन में लड़कों के बीच में, जो मैंने सुना उनके मुंह से. तो तभी वहां पे क्वारंटीन में ये ग्रुप बन चुके थे, एंड इसलिए फर्स्ट एपिसोड में यू कुड क्लियरली सी अ ग्रुप वेरी सून. एंड एक टास्क आप लोग भी जीते थे, बट आप लोगों को कुछ एक एडवांटेज आप लोगों को लगा था मिलेगी. यू गाइस आर वेरी हैप्पी, बट अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को एडवांटेज नहीं मिली. बट दूसरा टास्क ये लोग जीते, उन्हें एडवांटेज मिल गया एंड आप एविक्ट हो गए. तो यू फील समवेयर कि जीत कर भी एडवांटेज नहीं मिल पाया आपके ग्रुप को. सिल्वर कनेक्शन चैलेंज होता है जिसमें पिकअप लाइंस होती हैं. तो पिकअप लाइंस का जो कनेक्शन सिल्वर कनेक्शन चैलेंज है, वो लड़कों में जीतते हैं व्योमेश और ट्रेवोर. ऑब्वियसली both guys, दो उनके जो कनेक्शन है वो 2 कपल्स सेव होते हैं. दैट इज प्रीटी ऑब्वियस. तो ये सिल्वर कनेक्शन चैलेंज में मेरे ग्रुप का कोई भी बंदा सेफ नहीं होता है. So they don't have a chance to like save me or do anything. Okay, and if I'll ask you, like अभी कौन फ्रेंड्स है स्प्लिट्सविला से, कोई किसके साथ आप टच में हो? My best friends, my 2 best friends, Palak and Aditi, we are still together after the show. हम मिले भी थे, but because of lockdown हम अभी नहीं मिल पा रहे हैं. And लड़कों में Jay and Nikhil, I'm still in touch with them. Okay, so you're not in touch with Shivam? No. Horrible experience. I just can't. I mean, we were in touch after the show for some time, but then मेरे को नहीं जम रहा था उसके साथ, so we just stopped off. And talking about wild card, अगर wild card opportunity मिले आपको, तो you'll come back? We are not supposed to, like reveal, because I want people to watch Wild Villa. I want people to know कि कैसे हम वहाँ पे struggle करते हैं और कैसे perform करते हैं. And मेरे अलावा और कौन-कौन है wild card entries में, कौन-कौन आने वाले हैं, और उनमें से कौन कैसे जाता है wild card entry में दोबारा स्प्लिट्सविला में. So for that you guys will have to watch Wild Villa. Okay, तो वाइल्ड कार्ड में जब आप वापस जाओगे तो क्या डायनामिक्स चेंज होगी? कुछ थोड़ा बहुत इफ यू कैन हिंट अगर दे सको. गेम पूरा चेंज कर दोगे आप लोग जाके, क्या होने वाला है, कुछ थोड़ा तो हिंट दे सकते हो? So I had a very different attitude when I went back. I mean, I had no clue कि मुझे वाइल्ड कार्ड एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं निखिल चिन्नप्पा सर के साथ में कोई शो करूंगी. It was very shocking. And वहाँ पे जाती हूँ मैं, तो मुझे जो सिर्फ अपना एक क्लोज फ्रेंड लगता है वो देवशीष है. बाकी तो everyone is considering me as their strong competition, which was again a minus point for me. I mean, मैं तो बहुत डर गई थी तभी, because everyone was targeting me, all girls. I was like, get lost. I don't care. I'm not scared of anyone. Do whatever you want. तो ऐसा सिचुएशन हो गया था, बिकॉज स्प्लिट्सविला में मैं बहुत स्वीट रही थी. मैंने कभी किसी के साथ में फाइट नहीं की. मेरा फर्स्ट रियलिटी शो था. देन जब मैं वाइल्ड विला में, देन आई डिसाइडेड आई एम गोना स्क्रू एवरीवन. आई एम नॉट गोइंग टू बी दैट स्वीट जैसे मैं रही हूँ. एंड आल्सो स्प्लिट्सविला को बोलते हैं इट्स अ प्लेटफॉर्म जहाँ से आपको फेम मिलता है, लोग आपको और जानने लगते हैं. यू गेट मोर अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ वर्क एंड करियर के लिए काफी इट्स अ good platform. So abhi after Splitsvilla, if I'll ask you any changes in your life or any opportunity if you can disclose it. So because of lockdown, obviously I couldn't shoot a lot of projects which were in my hand,
बट इट्स फिंगर्स क्रॉस दैट जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो जाता है तो शूट्स और प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हो जाए. हाँ, अगर लॉकडाउन नहीं होता आई वुड हैव कम अप विद मोर म्यूजिक वीडियोस, मोर शॉर्ट फिल्म्स, मोर वेब सीरीज. बट the two things that happened was लोगों को मैं बहुत पसंद आने लगी. लोगों को लगा कि ये बहुत एटीट्यूड वाली होगी, but people are like, you're so sweet and you're so down to earth. People really appreciated me for my behavior. And the second most important thing was my Instagram account got verified after doing the show. So I think बहुत अच्छी चीज हुई मेरे साथ इस शो के बाद. अगर मैं आपसे बोल दूं आपको सिर्फ एक गैस करना है नेक्स्ट एविक्शन कौन होना चाहिए या आपकी जगह किसको एविक्ट होना चाहिए था, किसे आउट होना चाहिए था? मेरी जगह पे मेरे फ्रेंड्स को छोड़ के आई मीन देयर वाज दिस समृद्धि. आई मीन आई नेवर हैड अ वर्ड विद हर. ओके, मेरी फ्रेंडशिप भी नहीं थी, मेरी दुश्मनी भी नहीं थी, बट देयर वर ऑप्शंस फॉर गर्ल्स टू डम्प, बट शी चोज मी without any any specific reason. So I think she should get dumped. And according to you, who will win the show and whom you wanted to win? I can't see. I'll be really happy if anyone from my group wins the show because भले ही I couldn't make it आगे तक, but at least I want कि अदिति और पलक दोनों में से कोई एक ये शो जीते. I'll be really proud and happy. Really proud. And lastly, what you like to say to the viewers for this journey? To the viewers, I want to say first of all, thank you so much for always supporting me. हर एक एपिसोड के बाद I used to get DMs कि मैम आप हार गए, मैम ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे नहीं करना चाहिए था. People were literally watching and giving me feedbacks and good feedbacks. So I really loved. And to all the viewers, guys, काफी चीजें होती है हमारे शो पे. ऑफ कैमरा लोग बातें करते हैं, ऑन कैमरा लोग बातें करते हैं. 24 hours 48 hours का शूट होता है जिसमें सिर्फ आपको 1 घंटा दिखाया जाता है. So I think you shouldn't judge anyone's personality by that. And second thing, I wanna say sorry to my viewers because I didn't choose a right connection for myself. People are feeling sorry for me. So mistakes होती है life में लोगों के साथ, and I learned from my mistake. It was a lesson. So thank you so much, viewers, for loving me so much in spite of making mistakes on the show. Thank you so much, and I wish you all the luck. Thank you so much. Thank you. Take care and stay safe. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.